यस सर, स्टार्ट। जी स्टार्ट क्या दिया? इसको करूँ स्क्रीन शेयर है ना? नहीं, स्टार्ट कीजिए सर, आप कंटिन्यू करिए। Good afternoon, dear learners. Myself, Ravikant Misra, PGT Chemistry from Jawahar Navodaya Vidyalay, दतिया। मैं मां पीताम्बरा की नगरी से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम सीनियर सेकेंडरी के केमिस्ट्री का द सॉलिड स्टेट चैप्टर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वी नो दैट everything around us are known as matter. On the basis of physical state, the matter are classified in three subcategories. First one is the solid state, second one is the liquid state, and third one is gaseous state. So we will discuss today about the solid state. We know that on the basis of the constituent particles as well as its interaction base, the class of substances like that, अगर मैं बात करूं सॉलिड को लेकर के, सपोज दैट ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये स्पेरिकल, बिकॉज वी नो दैट एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स कंसीडर spherical in shape. So when in solid state, the constituent particles are close to each other and they are strongly attract to each other. When they are strongly attract, so they have a specific volume as well as rigidity, etc., etc. So let's start today's topic, the solid state, with the help of PPT. Okay, dear learner, as you know, the chemistry senior secondary, the solid state by Ravikant Misra, PGT Chemistry, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Bikar, Datia. So स्टार्ट करने से पहले हम इसके आउटलाइन पर जाएं तो देखिए, हम आउटलाइन में इसमें द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टल लैटिस एंड लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, ब्रेबेस लैटिस, लैटिस पॉइंट्स इन यूनिट सेल, voids in solids, determination of the formula of the compound, packing efficiency, calculation of the density of unit cell, imperfection in solids, types of point defect, electrical properties as well as the magnetic properties of solid. So now start. First we will discuss about the characteristics of solids. We know that solid have definite shape and volume, rigidity, incompressibility and high density. हम सब जानते हैं कि सॉलिड जो है उनका एक स्पेसिफिक डेफिनेट शेप होता है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, वो रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता और उनकी डेंसिटी अधिक होती है। In solid, the constituent particle, we know that the constituent particle considered like that atoms. We know that some solid substances made by the atom, some ions, and another someone are molecules also. So in solid, the constituent particles are very closely packed and occupy fixed position. जो constituent particle है वो बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं और एक फिक्स पोजीशन रखते हैं, इसलिए they have the fixed shape as well as the fixed volume. And next one, the classification of solids. So on the basis of the arrangement of constituent particles, the solids are classified in two subcategories. First one is crystalline solid and second one is amorphous solid.
सो क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उदाहरण के द्वारा आपको बताया गया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल क्वार्ट्ज रखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, ये भी हमारे सब क्रिस्टलाइंस में आते हैं, डिफरेंट रॉक सॉल्ट लाइक दैट NaCl, सीजियम क्लोराइड एटसेट्रा, ये भी क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल हैं। और एमोर्फस की अगर हम बात करें तो जो ग्लास है, जो रबर है और मैक्सिमम टाइप्स ऑफ जो पॉलीमर होते हैं वो सभी एमोर्फस की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करेंगे इसके हम फर्स्ट टाइप का, दैट मीन क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मैंने आपसे बताया कि जो क्रिस्टलाइन पार्टिकल है इट में बी आयन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आल्सो। So the constituents particles are orderly arranged in case of crystalline solid। देखिए क्रिस्टलाइन का मतलब है इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका जो अरेंजमेंट है वो परफेक्ट होता है, ऑर्डर्ड होता है, रेगुलर मैनर में होता है, व्यवस्थित होता है, तरीके से होता है। Have long range order and sharp melting point। Sir, what is the mean of long range order? क्या मायने होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर के? तो देखिए यहां लॉन्ग रेंज ऑर्डर से तात्पर्य यह है कि अगर हम बात करें इसमें कि जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है हमारा, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अगर हम जाएंगे, जैसा कि लिखा गया कि इनका जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज होता है और दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम इसको बात करें तो अगर इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है अगर हम इसको देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, देखिए एक रेड स्फीयर लिया गया, इसके बाद एक ब्लू स्फीयर लिया गया, तो जितना भी आप जो अरेंजमेंट देख रहे हैं तो क्रिस्टलाइन का मीन होता है ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो सिस्टमेटिक मैनर में होंगे। अब बात कर रहे थे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर से मीन यहां पर ये है कि जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग ड्यूरेशन में और सिस्टमेटिक मैनर में कंटिन्यू लंबे समय तक, लंबे ड्यूरेशन तक चलेगा, दैट मीन एंटायर द क्रिस्टल में चलेगा। आगे बात करें हम ये इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है इनका। अब ये आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक को लेकर के अगर हम डिस्कशन करें तो देखिए अगर हम थोड़ी सी ड्राइंग करके आपको बताएं कि सपोज दैट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हमने कहा क्रिस्टलाइन है, सपोज दैट एक स्मॉल है, एक लार्ज है, एक स्मॉल है, एक लार्ज है, एक स्मॉल है, ठीक है। फिर अगर आएंगे तो यहाँ पर स्मॉल होगा, फिर एक लार्ज होगा, एक स्मॉल होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। सपोज दैट हमने कहा NaCl है, ठीक है, या कोई भी है। तो अगर हम इसमें देखेंगे इनके अरेंजमेंट को आप पाएंगे, ठीक है, तो एक आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर हम इसमें अलग अलग डायरेक्शन में देखेंगे, हमने जो आपको ड्रॉ किया तो अभी आप देखेंगे तो आपको जो बड़ा वाला स्फीयर है वही दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो इस बिग दिख रहा है, देन स्मॉल दिख रहा है, देन बिग दिख रहा है, देन स्मॉल दिख रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन को लेते हैं, अगर आप देख पा रहे हो ये डायरेक्शन अगर हम लेते हैं तो इसमें आपको क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स ही दिख रहे हैं। तो मायने मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से देखते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन से देखने पर हमें डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाई देते हैं। तो दो सब्सटेंसेस which have the different properties with different direction are known as the anisotropic substances. Hence crystalline solids are anisotropic in nature. Now next one, crystalline solid. These are considered as true solid. रियल में वाकई में जिनको सॉलिड कहने का हक है, जिन्हें सॉलिड कहा जाना चाहिए, वाकई में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं। ये रियल सॉलिड है, ये वास्तविक सॉलिड है। दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज, दैट मीन अगर इनको कट किया जाता है तो इसके बाद एक क्लीन सरफेस मिलती है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है अगर इन्हें एक स्मूथ अगर इसको कट किया जाता है तो ये क्लीन क्लीवेज देते हैं, परफेक्ट क्लीवेज देते हैं। नेक्स्ट वन, द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट ऑफ फ्यूजन, दैट मीन ये मेल्ट हो जाते हैं। बात करें एग्जांपल की तो डायमंड, ग्रेफाइट, मेटल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, कॉपर एटसेट्रा, आयनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन में सेकंड पे अगर हम जाएंगे तो एमोर्फस सॉलिड, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट, नो रेगुलर अरेंजमेंट। जैसा कि हमें आपको कहा था
कि ये जो हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं, जो एमोर्फस सॉलिड हैं, उनके पास क्या रहेगा कि नो रेगुलर अरेंजमेंट एंड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज मतलब थोड़े समय के लिए कुछ एक अरेंजमेंट दिखाई देगा, फिर अरेंजमेंट चेंज हो जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए कभी भी अगर आपने कभी इसको देखा हो, आपसे कोई कहे ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप कहीं भी सर्च करेंगे तो ग्लास का कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिकॉज वो एमोर्फस सॉलिड है तो उसका कोई, अब क्यों नहीं होता इसके पीछे भी जाएं, क्योंकि देखिए जिसका ओरिजिन, जिसका जन्म, जिसका निर्माण ही इर्रेगुलरिटी के साथ हुआ है, जिसका फॉर्मेशन ही इर्रेगुलरिटी के साथ हुआ है, तो उसमें फिर कौन सा ऐसा कैरेक्टर होगा जो रेगुलर होगा, ठीक है। सो इसलिए नो शार्प मेल्टिंग point and range of temperature, isotropic in nature, physical property are same in all direction। अगर हम यहाँ एक बात करें आपसे तो देखिए, अगर हम इसी स्ट्रक्चर पे जाएंगे और इस स्ट्रक्चर पे अगर हम देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन से आप जहां से भी देखेंगे इसमें तो सब आपको इर्रेगुलरिटी ही नजर आएंगी। जाने पर अगर हमें इर्रेगुलरिटी ही नजर आए, ठीक है, तो इसका मतलब है वो सभी तरफ से हमें एक जैसा दिखाई दे रहा है। Hence it is the isotropic in nature, considered as pseudo solid or supercooled liquid. Why sir? Because we know that in case of amorphous solid the constituent particles are not arranged in regular manner, hence they are not called a true solid। ये वाकई में रियल सॉलिड नहीं है, ये स्यूडो सॉलिड है, ये छद में छल है, छलावा है, धोखा है ये, ठीक है। इसलिए इन्हें सुपर कूल लिक्विड माना जाता है। अगर हम इसी बात को आगे दोहराएंगे तो देखिए अभी हम बात करेंगे इर्रेगुलर क्लीवेज, ठीक है, इर्रेगुलर क्लीवेज। अगर इनको एक स्टूल, किसी भी एक टूल के द्वारा इनको कट किया जाए तो इसमें क्या होगा, आपको इर्रेगुलर क्लीवेज नजर आएगा। एमोर्फस सॉलिड, अब जब देखेंगे एमोर्फस सॉलिड में, एमोर्फस सॉलिड ऑन हीट और ऑन हीटिंग बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ एमोर्फस सॉलिड ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अगर हीट किया जाए तो फिर वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्वार्ट्ज का फॉर्मेशन होता है। अभी हम इसी पर अगर बात को जाएं तो ग्लास ऑब्जेक्ट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन अपीयर मिल्की। आपने ये देखा होगा किसी पुरानी, किसी ओल्ड, किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन, अगर किसी बिल्डिंग में आप देखेंगे तो जो बहुत पुराने ग्लास लगे हुए हैं जो पहले कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद लगे रहने पर कई सदियों के बाद देखा होगा वो मिल्की हो जाते हैं। इसी के साथ कहा गया एमोर्फस सॉलिड हैव फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। जैसे कि कहा गया कि अगर एंशिएंट बिल्डिंग में जो ग्लास लगे हुए हैं अगर आप उस पर नजर मारेंगे तो उसका जो बॉटम साइड में जो ग्लास होगा उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो गिलास है वो एमोर्फस सॉलिड है, और इससे ये प्रूफ होता है कि जो गिलास है वो धीरे धीरे मतलब लिक्विड की तरह बिहेव करता है, और जो टेम्परेचर बढ़ता है तब जाकर के धीरे धीरे वो फ्लो करता रहता है, जिससे कि वो बॉटम की साइड पर क्या होने लगता है, थिकनेस उसकी बढ़ जाती है कंपेयर टू टॉप। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो on the basis of the constituent particle we know that every type of solid must be prepared with the help of constituent particle। so on the basis as well as the interaction between them, constituent particle और उनके बीच के इंटरेक्शन के बेस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाइड किया जाता है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसके जो क्लासिफिकेशन है, पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सेकंड वन हमारा हो गया कोवेलेंट सॉलिड हो गया, थर्ड वन हमारा हो गया आयोनिक सॉलिड हो गया, और फोर्थ वन हो गया मेटालिक सॉलिड। तो बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड को, तो दो सॉलिड सब्सटेंस इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स एंड द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इट मे बी द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो इसी बेस पर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है, और फर्दर क्लासिफिकेशन के बेस पर मॉलिक्यूलर पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी होते हैं। अगर हम पोलर का एग्जाम्पल आपके सामने रखें तो लाइक दैट HCl, SO2 एटसेट्रा। अगर हम नॉन पोलर का आपके सामने एग्जांपल रखते हैं तो हो गया आयोडीन हो गया, H2 हो गया, Cl2 एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करते हैं तो आपके सामने आइस हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिस्पर्सन फोर्स और द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इनके बीच में। वीक वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में। हेंस दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज दे एक्ट एज ए इंसुलेटर आल्सो। लाइक दैट एग्जांपल आपके सामने है ये आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन जो आपका एग्जांपल दिया जा रहा है ये आपके सामने है आयोडीन।
बात करेंगे अब हम जाकर के सेकंड इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो आयोनिक सॉलिड, दो सॉलिड सब्सटेंस इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अपोजिटिव चार्ज्ड आयंस, हेंस द कैटायन एज वेल एज द एनायन. So the constituent particles are ions. Force of attraction is ionic bond. We know that in case of the constituent particle, the opposite charged ion, that means cation and anion, they are strongly attracted with the help of electrostatic attraction or ionic attraction. Hence, the ionic solids have the force of attraction is ionic bond. They have the high melting and boiling point. जो ionic solid है, एक्चुअल में इनके constituent particle के बीच में strong attraction होता है, इसलिए इनके melting and boiling point high होते हैं. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन द सॉलिड स्टेट. अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट में, अगर हमने आपको एग्जांपल दिया कि आप नमक NaCl सोडियम क्लोराइड लाते हैं तो सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर होगा, लेकिन अगर उसको मेल्ट कर दिया जाए या मॉल्टन स्टेट में आइदर एक्वा सॉल्यूशन बना दिया जाए तो वो क्या करते हैं, कंडक्टिविटी फ्लो करने लगते हैं. बिकॉज इन मॉल्टन स्टेट एज वेल एज द एक्वा सॉल्यूशन द आयंस आर फ्री. मूवमेंट के लिए आयंस फ्री हो जाते हैं, जिससे कि वो इजिली मूव होते रहते हैं और कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं और करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं in molten state as well as the aqua solution. Next one बात करेंगे metallic solid. The constituent particle are positively charged metal ions and free electron. Metals में constituent particle metal ion positively charged metal ions होते हैं और उनसे निकले हुए electrons होते हैं. इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा. Force of attraction is metallic bond, high electrical and thermal conductivity, malleable and ductile, high melting and boiling point. आप जानते हो, इसलिए हम इसको कोई करेंगे. टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब हम क्या करेंगे, अभी हमने आपका जो क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, उसी का क्लासिफिकेशन में हमारा फोर्थ और लास्ट वन है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर न्यूट्रल एटम. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कोवेलेंट बॉन्ड. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल न्यूट्रल एटम है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. ये भी इंसुलेटर है, लाइक दैट डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट, कोवेलेंट सॉलिड का एक एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी वो आप जानते हो कंडक्टिंग डिवाइस की तरह बिहेव करता है, कंडक्टर रहता है, आप जानते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ ग्रेफाइट, है ना. ओके, नाउ क्रिस्टल लैटिस और हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट को लेकर के. तो क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट हम समझे उससे पहले हम चाहेंगे कि आप इसमें आप देखेंगे कि क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट जो रहते हैं, क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट है, तो मैं चाहूंगा आपको कि इसको डेमोस्ट्रेट करूं और डेमोस्ट्रेशन के बेस पर आपको इसको बताऊं. एक्चुअल में देखिए क्या होता है कि जो क्रिस्टल लैटिस रहता है, लैटिस दैट मीन आप मान के चलिए जाल है एक तरीके से, ठीक है. तो जो क्रिस्टल लैटिस होता है हमारा, तो जो क्रिस्टल लैटिस है वो स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है. जो स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं. और किसी भी क्रिस्टल में जो पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, जिन पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है उन्हें लैटिस पॉइंट कहा जाता है. तो अगर हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस की, तो एक आपको अगर हम एक परफेक्ट एग्जांपल देते हैं जो आप सबने देखा हुआ होगा कि अगर आप कहीं पर किसी एक बनती हुई बिल्डिंग को देखें तो उसमें बिल्डिंग ब्लॉक को एक सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज किया जाता है. जब बिल्डिंग ब्लॉक को सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज किया जाता है और करते 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 एक बिग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब प्रिपेयर हो जाता है, तो उस बड़े 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस. और वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो एक हमारी जो हमारी एक ईंट है, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल. और किसी भी क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उन्हें पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं. इट में भी आयनिक सॉलिड में वो लैटिस पॉइंट आयंस होंगे, कोवेलेंट सॉलिड में वो एटम होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल होंगे और मेटालिक सॉलिड में मेटल होंगे. ठीक है, तो ये एक यूनिट सेल है. जैसे हमने आपसे कहा, तो एक बिल्डिंग ब्लॉक जब आपको नजर आएगी तो वो बिल्डिंग ब्लॉक जो रहेगा वो आपके लिए एक यूनिट सेल की तरह बिहेव करेगा, और जो एक बड़ी सी आपको दीवार दिखाई दे रही है वो एक लैटिस, क्रिस्टल लैटिस की तरह दिखेगा. लाइक दैट NaCl इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस होते हैं. ठीक है, अभी हम आपको फिर से पीपीटी पे ले जाएं, उससे पहले हम ये चाहेंगे कि जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल है, हम उसके थोड़े से आपको टाइप भी बताएंगे, जल्दी से देखिएगा. तो यूनिट सेल जो होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 तरीके की होती है. एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल.
primitive unit cell a unit cell in which the constituent particle are arranged at the corner of the unit cell. अगर हम unit cell को आपको समझाएं तो आप देखेंगे कि unit cell में एक्चुअल में क्या होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो 8 तो होते हैं कॉर्नर इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसके 6 फेज होते हैं, पहला फेज हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और ये छठवां हो गया। दैट मीन द यूनिट सेल हैव 8 कॉर्नर, 6 फेजेस एंड 12 एज्ड। 12 इसमें क्या होते हैं, एज रहते हैं। तो क्या होता है, 12 कहां होंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो इसी बेस पर हमने देखा कि इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हुए। एक तो हुआ हमारा इसमें इसके कॉर्नर देखेंगे, अगली बात हम फेज को जाना हमने, इसके बाद ये जाना कि इसके एड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल द यूनिट्स आर क्लासिफाइड इन 2 सब कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द सेंटर प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकंड वन इज द सेंटर्ड यूनिट सेल। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करेंगे तो ये यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ऐसी यूनिट सेल जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो केवल कॉर्नर पर रहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग primitive unit cell। और ये unit cell in which the constituent particle are present at the corner of the unit cell as well as the other places also। यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ कहीं और भी अगर रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर यूनिट सेल। अब वो कहाँ रहते हैं उस बेस पे अगर हमको आपको बताया तो अभी पीपीटी की हेल्प से हम आपको इसको फिर से समझाते हैं। और पीपीटी की हेल्प से अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम जाएंगे कि किस तरीके के हमारा जो किस तरीके से हमारी जो डिफरेंट यूनिट्स जो रहती हैं, डिफरेंट यूनिट सेल रहती हैं, तो उस डिफरेंट यूनिट सेल को हम कैसे आपको समझाएं। तो अभी हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस की। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ये देखिए इसमें जो हमने एक आपको ये एक शेडेड एरिया जो दिखा रखा है आपको, ठीक है, जो शेडेड एरिया आपको दिखा रखा है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको देखते हैं आपको यहाँ बात करेंगे कि जो आपको छायादार भाग इसमें दिखाया जा रहा है वो एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो यूनिट सेल है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो एंटायर जो आपको यहाँ दिख रहा है ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है। चलिए नेक्स्ट बात करें यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द सिंपलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different direction generate the entire lattice। डिफरेंट डायरेक्शन में अगर इसको अरेंज करते जाएंगे तो क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। जैसा कि दिखाया गया आपको कि यहाँ पर यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द 6 पैरामीटर। एक फेज जो होते हैं इसके, जो कि यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसकी ऐसे किनारे हैं और एंगल होते हैं ये इनके बीच के एंगल को अल्फा बीटा और गामा इनको एंगल से रिप्रेजेंट किया गया। ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये इसको एज एंगल बोला जाता है और इनको एज लेंथ कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन की मैंने बात की तो प्रिमिटिव यूनिट सेल आप देख पा रहे हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपको सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज द अदर सेंटर्ड पोजीशन ऑल्सो। तो इस बेस पर के अदर पोजीशन तो कहां पाए जाते हैं वो अदर पोजीशन में, तो इस बेस पे हमने सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर हम बात करें पहले बॉडी सेंटर्ड की तो ये यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एज वेल एज द सेंटर ऑफ होल बॉडी ऑल्सो। तो एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो रहते ही हैं और उसके साथ साथ उसकी होल बॉडी के सेंटर में भी रहता है, तो उसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड की बात करें अगर हम एफसीसी तो ये यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एज वेल एज द सेंटर ऑफ एवरी फेस।
सभी फेस के सेंटर पे भी, जिसको मैं मार्क करके आपको बता रहा हूं, सभी सेंटर के फेस पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं तो उसको फेस सेंटर्ड कहते हैं। एंड थर्ड वन है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ECC, इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एज वेल एज द सेंटर ऑफ एनी टू अल्टरनेटेड फेसेस। किन्हीं भी दो अल्टरनेटेड फेस के सेंटर पे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर पाए जाएंगे कॉर्नर के साथ साथ, तो इसको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब हम ब्रेविस लैटिस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिट सेल एट जो प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड है इन 3 डायमेंशन लैटिस इज 14। 14 तरीके के ब्रेविस लैटिस होते हैं। ये किस बेस पे बनाए गए कि जो हमारा एज लेंथ जो रहती है और जो बॉन्ड एंगल रहते हैं, जैसा कि अगर हम आपको यहाँ इसके माध्यम से बताने की कोशिश करें तो जो क्यूबिक आपको दिख रहा है, जिसमें कि जब आप जानते हो ये क्यूब बनाओगे तो क्यूब के लिए क्या करोगे आप, क्यूब जब बनाते हो तो क्यूब बनाने के लिए अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करूं तो जो आप इसको क्यूब बनाओगे तो इसके जो लेंथ है एज वेल एज दो एंगल है, तो जो लेंथ है एज लेंथ है वो हमारी A इक्वल टू B इक्वल टू C होना चाहिए, सभी इक्वल होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं 10 बाई 10 बाई 10 का रूम है तो वो क्यूब की तरह हो गया। एज वेल एज जो बॉन्ड एंगल्स है हमारे वो कैसे होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा इक्वल होना चाहिए और 90 डिग्री के होना चाहिए, तब जाकर के उसको हम क्यूबिक बोलेंगे, तब उसको जाकर के क्यूबिक बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिएगा, तो इस तरीके से हम इसमें अगर जाएंगे तो एग्जाम्पल हो गया आपके सामने NaCl हो गया, KCl हो गया, डायमंड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके टोटल ब्रेविस लैटिस जो होते हैं वो 14 टाइप के होते हैं। इनको अगर हम डायग्राम की हेल्प से बताएं तो हमारा क्या होगा, एक तो प्रिमिटिव हो गया, दूसरा जैसा आपके सामने है ये प्रिमिटिव हो गया, ये एंड सेंटर्ड हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड हो गया, ये फेस सेंटर्ड हो गया। ठीक है, ये प्रिमिटिव हो गया और मोर देन 90 डिग्री होगा तो इस तरीके से आप समझते हो, और अगर लेस देन 90 डिग्री हो गया तो इस तरीके से हो गया। और जो एंड सेंटर्ड है, ठीक है, जो एंड सेंटर्ड है वो उसमें हमारे क्या रहेंगे, अपोजिट फेस के सेंटर पर रहेंगे। प्रिमिटिव और सिंपल की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने अभी देख लिया है, जो प्रिमिटिव है, ठीक है, वो ओनली कहाँ होंगे, कॉर्नर पर रहेगा केवल हमारे, ठीक है, केवल कॉर्नर पर रहेगा। इसके अलावा जो बॉडी सेंटर्ड है वो होल बॉडी के सेंटर में होगा, फेस सेंटर्ड है वो सभी कॉर्नर के साथ साथ। इस तरीके से द 3 क्यूबिक लैटिस होगा, ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ, एंगल बिटवीन फेसेस ऑल 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्रेविस लैटिस है, ये 14 टाइप्स के होते हैं। ये आपको इस तरीके से हमने इनको प्रेजेंट किया। ठीक है, अब आगे अगर हम जाएं और इसमें बात करें, हम डिस्कशन करें नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। तो किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, इसको मैं आपको बताऊं तो आप जल्दी समझिएगा इस चीज को कि प्रिमिटिव ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो रहते हैं, ठीक है, जो प्रिमिटिव ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कहाँ पाए जाते हैं, 8 कॉर्नर्स पे रहते हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर्स पे रहते हैं। और जो 8 कॉर्नर्स पे रहते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ एटम फॉर यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से यहाँ इसको समझाया गया। ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो क्या कहा गया, 8 इंटू 1/8। ये 1/8 क्यों कहा गया, तो इस डायग्राम से देखिए एक्चुअल में जो कॉर्नर पे पार्टिकल होता है, अब आप इसको समझिए और मैं चाहूंगा आप किसी ना किसी एक रूम में बैठे हुए हैं, जरा उस रूम को कंसीडर करिए, ध्यान दीजिए जरा मैं जो आपसे बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं एक रूम के पास में दूसरा रूम, उसके पीछे रूम, आगे रूम, नीचे रूम, ऊपर रूम बना दिया जाए तो आप समझेंगे कि एक जो कॉर्नर होगा वो टोटल 8 रूम्स के टच में आएगा। जो एक कॉर्नर होगा वो क्या होगा, टोटल 8 रूम्स के टच में आएगा। दैट मीन एक तो यही रूम रहेगा, इसके पास एक क्यूब बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा और 4 ऊपर बनेंगे। तो यहाँ पर टोटल जाकर के 8 कॉर्नर्स टच में आएंगे। तो इस कॉर्नर पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उसका कंट्रीब्यूशन टोटल 8 यूनिट सेल में होगा, तो पर यूनिट सेल को उसका 1/8 पार्ट मिलेगा। इसलिए आपने 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 एटम कहा। अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं तो कॉर्नर के साथ तो सभी में वही होना है जो अभी हमारा प्रिमिटिव के साथ या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के साथ हो रहा था। लेकिन जो इसकी आप देख पा रहे होंगे डायग्राम की हेल्प से, जो इसकी बॉडी के सेंटर्ड में है
अगर आप रूम के पास में रूम ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी बनाएं, लेकिन इस रूम के अंदर जो सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन किसी के साथ भी नहीं होगा, तो ये पूरे का पूरा उसी यूनिट सेल को मिल जाएगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया 8 इंटू 1/8, ये तो सभी कॉर्नर के साथ होना है, और +1 जो कहा गया वो +1 कौन सा है हमारा, जो होल बॉडी के सेंटर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो हमारा उसी को पूरी उसी यूनिट सेल को मिलेगा। इसलिए हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो 1 एटम इन पर यूनिट सेल, अगर हम बीसीसी की बात करें तो 2 एटम इन पर यूनिट सेल। अब हम फेस सेंटर्ड में जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो फेस सेंटर्ड में क्या होगा कि देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कॉर्नर पे है उनके साथ तो वही होगा जो हो रहा था, ठीक है, लेकिन जो फेस के सेंटर पे, अगर मैं आपसे जल्दी से एक बात करूं, एक दीवार आपके एक कमरे की दीवार है तो वो कितने रूम के काम आ सकती है। आप जानते हैं कि अगर एक कमरे की एक दीवार है उस तरफ भी अगर आप एक रूम बनाते हैं तो वो दीवार दोनों की तरफ काम आ जाएगी। आप इस तरफ चाहो तो उसमें व्हाइट कलर कर लो और वो चाहे तो उस तरफ येलो कलर कर ले। तो इस तरीके से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो फेस के सेंटर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसका शेयरिंग केवल 2 यूनिट सेल के साथ होगा। और जैसा कि हम जानते हैं टोटल फेस कितने हैं हमारे 6 हैं, ये तो आपको दिख रहा है, एक पीछे होगा एक नीचे होगा, ठीक है, एक इस तरफ होगा। तो क्या लिखा गया है 8 इंटू, देखिए कॉर्नर के साथ तो वही हो रहा है 8 इंटू 1/8, ठीक है, और जो फेस के सेंटर पर है तो टोटल फेस कितने हैं 6, और हर एक जो सेंटर पे जो अपना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसकी हर एक यूनिट सेल को 1/2 आधा पार्ट मिलेगा, बिकॉज शेयरिंग हो रही है 2 के साथ में, तो इसलिए 1/2 और इंटू 6 फेसेस है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए 4 एटम हुए। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर यूनिट सेल 4 होंगे। हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग की। अगर क्लोज पैकिंग की बात करें, व्हाट इज द मीन ऑफ क्लोज पैकिंग, व्हाट आर द नीड ऑफ क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स आल्सो। सो देखिए अगर क्लोज पैकिंग नहीं होगी, अच्छा आपसे अगर हम कौन बात करते हैं, आप कहीं पर अगर बाहर जाते हो, आपके पास एक ब्रीफ केस है जिसमें कि आपको पैकिंग करना है, तो आप अपने सारी चीजें जो भी लेके जाना है उनको ऐसे ही उस ब्रीफ केस में डाल लेते हैं और उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो एक फ्रूट सेलर, इसने भी क्या किया है कि जो आपने फ्रूट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे तरीके से इसने इसको अरेंज करके रखा है। तो we know that in case of solid substances the constituent particles are arranged in regular manner as well as the close to each other also. So the constituent particle in solids are closed packed leaving minimum vacant space, कम से कम जगह घेरते हैं। लेकिन शायद आप ये सोचते होंगे क्या सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 100% वॉल्यूम 100% स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं? सो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो स्फेरिकल होते हैं और स्फीयर को आप कितना भी पास लाओ, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था कि आप सपोज दैट 4 क्रिकेट की बॉल है आपके पास में, उनको आप कितना भी पास लाओ लेकिन बीच में एक कैविटी रह जाएगी, इट इज नोन एज द इंटरस्टिशियल स्पेस। जो बीच में एक कैविटी रह जाएगी, जो बीच में एक स्पेस रह जाएगा, उसको आप ऑक्युपाई नहीं कर सकते क्योंकि स्फेरिकल शेप में है। So the packing pattern follow in 1-dimensional, 2-dimensional and 3-dimensional. Also the number of sphere level to the one sphere is called its coordination number. किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड या किसी भी क्लोज पैकिंग के फॉर्मेशन में जो स्फीयर हैं, जो नेबर स्फीयर हैं, पड़ोसी स्फीयर हैं, क्लोज जो स्फीयर हैं, पास पास हैं, वो एक पार्टिकल को, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को जो नेबर कितने पार्टिकल्स उसको सराउंडिंगली कवर्ड करके रखते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अब बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड इन 1 डायमेंशन। तो इसमें क्या है, इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे, इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विथ 2 ऑफ इट्स नेबर्स। तो एक जो पार्टिकल है वो कितने के कांटेक्ट में है, पड़ोसी 2 के कांटेक्ट में है, ठीक है, हेंस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। इन केस ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए क्या कहा गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए सेकेंड रो इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द फर्स्ट रो। देखिए ये अगर आपकी फर्स्ट रो है तो सेकेंड रो को उसी के ऊपर अलाइन किया गया, नेक्स्ट रो भी उसी के ऊपर है, नेक्स्ट रो भी उसी के ऊपर है। और अगर हम किसी एक स्फीयर को की बात करें और देखें कि उसके कांटेक्ट में उसके पड़ोसी कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं और उनके सेंटर को अगर हम जोड़ दें, तो आप देख रहे होंगे अगर उनके सेंटर को जोड़ा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, तो वहां पर क्या हुआ कि एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ, हेंस इट इज नोन एज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा गया। ए टाइप क्यों कहा गया, क्योंकि सभी अरेंजमेंट एक जैसे हैं,
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों हुई आप देख पाते हो, हमने अभी आपको सामने देखा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पड़ोसी 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है, नेबर पार्टिकल्स 4 है। हेक्सागोनल की बात करें तो इसमें क्या कहा गया, सेकंड रो इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द स्फीयर एडजेसेंट टू द फर्स्ट रो। इसमें फर्स्ट रो के डिप्रेशन में देखिए, डिप्रेशन जो बीच का स्पेस था यहां पर इसको रखने की कोशिश की गई। इससे क्या हुआ, अच्छा आपको देखिए, आपको पैकिंग में मतलब जो डेंसिटी है क्लोज जो है एक दूसरे के पार्टिकल यहां ज्यादा दिखाई दे रहे हैं या यहां ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको। तो क्या कहा गया है इसमें, अगर हम बात करते हैं तो सेकंड रो इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ स्फीयर एडजेसेंट टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के डिप्रेशन में रखी गई सेकंड रो को। तो आप इसमें देखेंगे अगर ये पार्टिकल जैसा कि लिया गया तो इसके टच में ये आप देख रहे होंगे 6 स्फीयर है, इनको हमने सेंटर को जोड़ दिया तो हेक्सागोन का फॉर्मेशन हो गया और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हेंस इट इज नोन एज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पैकिंग ऑफ सेकंड लेयर ऑन फर्स्ट लेयर अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स की वॉइड्स क्रिएट होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अच्छा सर ये वॉइड्स क्या होती है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जब उनको पास रखा जाता है तो उनके बीच में वैकेंट स्पेस रह जाता है, एक एम्प्टी स्पेस रह जाता है जिसको कि हम वॉइड कहते हैं। अरेंजमेंट के बेस पे ये वॉइड्स 2 टाइप की होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जैसा शेप होगा उस टाइप्स के वॉइड्स जो होगी उसको जाकर के हम लोग उसी तरीके से नाम देते हैं। अगर टेट्राहेड्रल रेजिमेंट बन रहा है तो टेट्राहेड्रल, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे टेट्राहेड्रल रेजिमेंट है, ये 4 के साथ 1 ये और 3 ये, तो इसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोल रहे हैं। और अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो इसमें आपको 6 स्फीयर दिखेंगे ऑक्टाहेड्रल में, और कहां दिख रहे हैं 1 2 3 4 और एक ऊपर और एक नीचे 6, तो इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहा। वॉइड इन सॉलिड अभी हमने आपसे कहा टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये देखो फिर से आप देख पाओगे टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। अगर इसमें किसी कंस्टिट्यूएंट स्मॉल पार्टिकल को लाएंगे तो नेबर पार्टिकल 4 है। और अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे और इसकी बात करेंगे, अगर हम ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ है होल्स सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा। नंबर ऑफ वॉइड्स इन सॉलिड में लेट्स बी एज्यूम दैट द क्लोज बैक स्फीयर, कितने एज्यूम कर लिए हम लोगों ने कि वो n है, तो आपने देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n हो जाएंगे क्योंकि आप ऊपर और नीचे दोनों जगह से मिलके होंगे। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो अबव एंड बिलो द प्लेन जो रहता है तब 6 स्फीयर मिलकर के एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस पे डिपेंडेंट कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिन पे भी डिस्कशन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। एक्चुअल में देखिए 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो रियल में तो 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक, इसमें क्या है स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर, देख रहे होंगे आप कि स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर के जो स्फीयर हैं, ठीक है, प्लेस जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर। इस पे फर्स्ट लेयर है, 3D अरेंजमेंट किया गया, दैट इज जनरेटेड इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और यूनिट सेल इज प्रिमिटिव। आपके सामने डायग्राम है, आप देख पाओगे ये प्रिमिटिव क्यों है, देखिए क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको कहां नजर आ रहा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको कॉर्नर पे नजर आ रहा है ना, ये सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कॉर्नर पे नजर आ रहा है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया प्रिमिटिव, ठीक है। और एक एग्जांपल इसमें पोलोनियम हो गया। अब क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशंस की बात करते हैं तो 3D क्लोज पैकिंग 2 टाइप की हुई हमारी। स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। देखिए इसके डिप्रेशन अल्टरनेटिव जो डिप्रेशन है उन फर्स्ट लेयर के अल्टरनेटिव डिप्रेशन पे अगर हमने पार्टिकल्स को रख दिया तो जाकर के ये अरेंजमेंट बनता है। द थर्ड लेयर ओवर द टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड फॉर्म AB सेम अरेंजमेंट, अगला फिर सेम अगला, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को AB अरेंजमेंट कहते हैं। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। कैसे होती है अगर हम आपको बताएं जल्दी से, तो अगर ये सपोज दैट यहाँ पर ये कलर आपका सेम हो रहा है यहाँ, चलिए अगर यहाँ पर ये इसको देखें तो देखिए 6 तो होगा सेम लेयर में होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सराउंडिंग कवर कर रहा है, 3 अबव द प्लेन और 3 क्या होगा बिलो द प्लेन, हेंस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। सिमिलर यहाँ भी वही बात की जाएगी, जो थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया वो यहाँ किया गया कि अगर हमने यहाँ पर अल्टरनेटिव 1, 3 और 5 पे रखा है तो जो दूसरा ये बनाया गया ये होगा हमारा 2, 4 और 6 डिप्रेशन पर रहेगा, ठीक है। सेम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, वही अरेंजमेंट है, सब वही, बस यहाँ पर सिस्टम थोड़ा बदल जाता है, इसलिए इसको ABC पैटर्न कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सपोज दैट ये क्यूबिक, अगर एक न्यूमेरिकल ले लिया, अगर हमने यहाँ पर एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट X and Y एटम Y आर एट कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। Y कहाँ है, कॉर्नर पर है, तो आप जानते हो 1/8 × 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 1 होगा। और X एटम कहाँ पर है, द बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर पे तो होल उसी को मिलेगा, तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, XY होगा। ऐसा एक दूसरा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा समय अभाव की वजह से आप इसको देख लीजिएगा, इसको पढ़िएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम,
ठीक है, तो ये आपको सिंपल दैट मीन प्रिमिटिव बनाया गया, ये फेस सेंटर्ड बनाया गया, ये बॉडी सेंटर्ड बनाया गया। डायग्राम आपके सामने है, आपके पड़े हुए हैं। इसमें क्या रहता है, जो हमारा एज लेंथ रहती है, जो अपनी जो एज लेंथ रहती है, तो एज लेंथ a इक्वल टू 2r है इसमें, ये एज लेंथ a इक्वल टू 2√2r रहेगी और एज लेंथ a इक्वल टू 4r अपर √3 रहेगी। अब अगर हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी को लेकर के, तो सर व्हाट इज द मीन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, व्हाट आर द नीड ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन रेस्पेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के केस में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? देखिए, सॉलिड जब बनाते हैं तो ये तो कंसीडर किया ही जाता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितना हो सके उतने पास रखें हम। तो लिखा है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। कि किसी भी सॉलिड में टोटल वॉल्यूम का, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमने आपसे कहा ऐसा कोई सॉलिड नहीं हो सकता जिसमें कि 100% वॉल्यूम को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्युपाइड किया जा सके, क्योंकि स्पेरिकल स्पेयर है, गोले हैं, और गोले अगर होंगे तो उनके बीच में स्पेस रहेगा जिसको इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं, जिसको कि कंप्लीटली अगर हम यहाँ अगर इसको अगर हम ड्रॉ करें, ये देखिए, ये देखो हमने आपको ले लिए, अगर आपको 4 स्पेयर अगर यहाँ ले लिए, कितना भी क्लोज कर लें लेकिन बीच में इनके एक स्पेस रह जाएगा। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ वन एटम, यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ एटम को कंसीडर कर लिया हमने n है, जो है उसकी मान रखी है a, तो एक ही हो जाएगा उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी पहले कैलकुलेट करेंगे हम सिंपल यूनिट सेल में, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। वन एटम क्यों लिया? बिकॉज वी कैलकुलेट दैट इन केस ऑफ the number of atoms in simple cubic unit cell 1, in case of BCC the number of atoms in per unit cell 2, in case of FCC the number of atoms in per unit cell is 4। ठीक है, इसलिए यहां पर हम लोगों ने क्या लिया, वन लिया हुआ है। तो आप देखेंगे ये वन हो गया हमारा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये वन स्पेयर है उसका वॉल्यूम हो गया, ये 100% बिकॉज एफिशिएंसी परसेंटेज में निकाल रहे हैं। और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल है, तो आपने देखा था उसकी वैल्यू क्या थी, 2r थी, है ना, तो 2r थी, तो उसको क्या हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो 8r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 52.4%। दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 52.4%। But consider that in case of packing efficiency in FCC, so volume occupied by the 4 क्यों कहा गया, क्योंकि FCC के पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 4 होते हैं, और पर पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है स्पेरिकल 4/3 पाई क्यूब है, 100 ये परसेंटेज की बेस से है। और ये जैसा कि हम बता चुके हैं पिछली स्लाइड में कि इसके लिए जो एक ही वैल्यू है वो कितनी आती है, 2√2r। ठीक है, वैल्यू रख दी, put the value, get the answer 74%. That means the packing efficiency in case of face centered cubic unit cell is 74। अब हम बात करते हैं बीसीसी की, तो यहाँ पर वॉल्यूम ग्रुप है 2 स्पेयर। 2 क्यों कहा गया, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बीसीसी में, 2 हैं, और एक पर यूनिट जो वॉल्यूम रहेगा उसका 4/3 है, सिमिलर है, 100 हो गया। यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ रही है एक ही, जो हम लोग देख रखी है पहले, 4/√3r, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ रहा है, 68%। हेंस इट इज क्लियर दैट कंपैरिजन करेंगे अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी का, तो आपने देखा कि एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 है, इसका मतलब वॉइड स्पेस, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस 47.6% पड़ा हुआ है। बीसीसी की बात करेंगे तो 68% पैकिंग एफिशिएंसी है, इसका मतलब ये है कि 32% इसमें वॉइड स्पेस पड़ा हुआ है। अगर एफसीसी की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी है 74%, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो वॉइड स्पेस है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, वो भी 26% है। इससे क्लियर हो रहा है कि 100% वॉल्यूम को ऑक्युपाइड नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करेंगे एक फॉर्मूले को लेकर के, डेंसिटी यूनिट्स और जो कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एज्यूम दैट कि जो यूनिट सेल का हमारा जो वॉल्यूम है उसको हमने कंसीडर कर लिया कि वो AQ है, और मास है तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल और मास ऑफ ईच एटम। जेड कंसीडर कर लिया हमने, नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल जेड, और दो मास है वो ईच एटम का m हो गया। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर मास का कैलकुलेट करें, मास ऑफ एन एटम स्मॉल m इज इक्वल टू मोलर
of unit cell as well as the volume of unit cell. Put the value of जैसे Z क्या हो गया आपका, Z into M क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका mass of unit cell. AQ क्या हो गया इसका, ये हो गया volume of unit cell. Put the value of small m with the help of that. देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, m की वैल्यू आपने रख दी तो कैपिटल M अपॉन Na हो जाएगा, तो डेंसिटी जो है ये फार्मूला निकला अपना D इक्वल टू ZM अपॉन AQ इंटू Na. इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स. सो देखिए क्या होता है कि जो सॉलिड होते हैं, ये सही बात है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक रेगुलर है, सिस्टमैटिक है, ट्रू है, रियल है, वास्तविक है, सही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो जाता है, इनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं. अगर हम बात करें रीजन को लेकर के डिफेक्ट्स क्यों आ जाते हैं, तो डिफेक्ट्स के पीछे दो कॉज होते हैं. नंबर 1 इंक्रीज द टेम्परेचर और नंबर टू एडिंग द इम्प्योरिटी. So any deviation from perfect order arrangement of the constituent particle in crystal lattice is called imperfection in solid. एक आइडियल क्रिस्टल आपको ड्रॉ किया गया, परफेक्ट दिख रहा होगा, सुकून मिल रहा होगा जिसको देखने पर, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नजर आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, वो एक आइडियल क्रिस्टल है. लेकिन आप इसको देखेंगे, इसमें आपको इरेगुलरिटी भी दिखाई दे रही है, इंपरफेक्शन, डिफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये डिफेक्टिव क्रिस्टल है. टाइप ऑफ इंपरफेक्शन की बात करें, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स की बात करें, तो डिफेक्ट्स दो तरीके की होती है. एक होती है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है, अराइज ड्यू टू द डिसऑर्डर इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अराउंड ए पॉइंट. एक पर्टिकुलर पॉइंट के सराउंडिंग कुछ इरेगुलरिटी हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, तो उसको पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं. और अगर पूरी लाइन में ही अगर हमारा डिफेक्ट आ जाए, कभी कभी आपने देखा होगा, भाई आप कभी किसी कपड़े को खरीदने के लिए गए मार्केट में, उसकी सेल लगी, रेट कम हो जाती है, कारण ड्यू टू इट्स डिफेक्ट, क्योंकि उसके अंदर कुछ डिफेक्ट है, कमी है, इसलिए उसका रेट घट गया. तो इसी तरीके से या तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफेक्ट होगा या पूरी लाइन में डिफेक्ट होगा. अगर हम बात करेंगे इंपरफेक्शन की, तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं, टाइप ऑफ पॉइंट्स डिफेक्ट टू टाइप के होते हैं. इंप्योरिटी डिफेक्ट, टू टाइप नहीं, 3 टाइप्स के होंगे हमारे. इंप्योरिटी डिफेक्ट्स, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स. तो यहां अगर हम स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करेंगे, तो वैकेंसी डिफेक्ट इन द सेंस कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में कोई पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ के चले जाए, वहां पर वैकेंसी क्रिएट कर दे, तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया. अगर हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएगा और जाकर के उसके वॉइड में, उसके इंटरस्टिशियल वॉइड में पहुंच जाएगा, तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे. और इसके अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जो फ्रैंकल और शॉर्ट की, ये 2 टाइप्स का रहता है हमारा, ठीक है. और जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक रहते हैं वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं और मेटल डेफिशिएंसी. अब आप 1 बाय 1 करके इन पर डिस्कशन करें. सो इंप्योरिटी डिफेक्ट की बात करें तो अराइज व्हेन फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंट एट द लैटिस साइड इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम जनरेट इंप्योरिटी डिफेक्ट. दैट मीन इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा कि कोई दूसरा फर्दर अगर आप सब्सटेंसेस आकर के उसमें वो ऑक्यूपाई हो गए, जैसे आप देख पा रहे हो इसमें Na था, Cl था, Na था, Cl था, Cl था, ये क्या हुआ यहाँ पर, ये Sr कहां से आ गया, स्ट्रोंशियम कहां से आ गया. दैट मीन यहाँ स्ट्रोंशियम ने क्या किया, एक यहाँ के Na पॉजिटिव को और एक यहाँ के Na पॉजिटिव को डिस्प्लेस करके और अपने आप को ऑक्युपाइड कर लिया, अपने आप को ऑक्युपाइड कर लिया. लेकिन उसके बाद भी एक स्पेस, एक पॉइंट यहाँ पर खाली रह गया, वैकेंट रह गया, और उसने एक डिफेक्ट क्रिएट कर दिया. ठीक है, when a little amount of strontium chloride is added to NaCl, then some lattice sites Na positive ion are substituted by strontium ion maintaining electrical neutrality. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्यों मेंटेन हुई, क्योंकि जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं वो ऐसे डिफेक्ट्स हो जाते हैं कि डिफेक्ट्स भी हो जाए लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए. और स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में ऑलवेज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहना चाहिए. तो इसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ही आपने देखा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ही 2 Na पॉजिटिव गए और उसकी जगह पर एक ऐसा डाई पॉजिटिव आ गया. लिखा हुआ है द कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ ऐसा डाई पॉजिटिव आयन. जितने ऐसा डाई पॉजिटिव लाओगे उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी चली जाएंगी, क्योंकि 2 Na जाएगा तब एक ऐसा डाई पॉजिटिव आ पाएगा. ओके, नाउ वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करें तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, अराइज व्हेन सम ऑफ द लैटिस पॉइंट लेफ्ट वैकेंट ड्यूरिंग द क्रिस्टल फॉर्मेशन. कुछ स्पेस खाली रह गया, कुछ पॉइंट खाली रह गए, तो वैकेंसी डिफेक्ट है. और जैसा मैंने आपसे कहा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है कि कोई एक्स्ट्रा आकर के इंटरस्टिशियल वॉइड में अपने आप को ऑक्युपाई कर लिया, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा गया.
अब इसके टाइप पे बात करें तो शॉर्ट की और फ्रैंक के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करें तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन लिखा हुआ है, आप देखिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटेस्ट साइड, इक्वल नंबर में, दैट मीन जितने पॉजिटिव आयन मिसिंग होंगे और उतने ही क्या होंगे आपके नेगेटिव आयन मिसिंग होंगे। तो इक्वल नंबर में जो कैटायन और एनायन मिसिंग होंगे, तो क्योंकि देखिए शॉर्ट की और फ्रैंकल ये दोनों ही स्टाइक्यूमेटेड डिफेक्ट्स के टाइप हैं, और स्टाइक्यूमेटेड डिफेक्ट्स का एक कंडीशन है कि डिफेक्ट्स हो जाए लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। The vacancy defect short Q of ionic solid decrease the density of solid. Obviously जब शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगी, क्योंकि आप देखो जब स्पेस खाली रह जाएंगे तो डेंसिटी तो कम हो जाएगी कि नहीं। क्लास में से कुछ बच्चे अपनी जगह को छोड़ के चले गए तो क्लास में तो डेंसिटी कम हो जाएगी। सो बाय द क्रिस्टल विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, इस टाइप का डिफेक्ट्स उन क्रिस्टल्स के द्वारा शो किया जाता है जिनका की कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो इन आयनिक सॉलिड, इनमें क्या हो जाता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है और जनरली क्या होता है वो पॉजिटिव आयन रहता है। कारण क्यों रहता है सर पॉजिटिव आयन? वी नो दैट द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम, और वी नो दैट द इंटरस्टिशियल जो वॉइड रहती है वो छोटी रहती है, और इंटरस्टिशियल वॉइड में कोई बड़ी साइज का पार्टिकल नहीं आ सकता, इसलिए इंटरस्टिशियल वॉइड में यहां पर आकर के जो कैटायन है वो कैटायन ही आकर के हमारे क्या होते हैं अपने आप को ऑक्युपाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऑफ आयनिक सॉलिड डेंसिटी रिमेन सेम, लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं होती बिकॉज जो हमारा कैटायन है, जो आयन है वो लैटिस को छोड़ के नहीं गया है, बस केवल उसने डिसलोकेट कर दिया, डिफेक्ट क्रिएट कर दिया, छोड़ के नहीं गया, इसलिए डेंसिटी रिमेन सेम। हम बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि मेटल एक्सेस, दैट मीन यहां पर हम जानते हैं कि जो कैटायन होते हैं वो मेटल आयन होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको एनायंस की तरह कंसीडर किया जाता है। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरीके से क्रिएट होता है, एक होता है बाय एनायन, आपको अगर हम एनायन है वो जाएगा और वहां पर अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा, क्योंकि डिफेक्ट्स के बाद में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कि यहां पर एनायन चले गए, दूसरा हो सकता है एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, कैटायन कोई आ गया, और हम जानते हैं जो कैटायन है वो हमारे इंटरस्टिशियल वॉइड में आ सकता है क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है। तो लिखा हुआ है अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बाय एन इलेक्ट्रिकल प्रेजेंट नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड में इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इस तरीके से ये भी कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। तो हमें यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एज वेल एज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सो सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीन तरीके से, वो आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो दो सॉलिड्स विद कंडक्टिंग रेंज जो है वो 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर, देख पा रहे होंगे आप, 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 7 तक अगर रहती है तो कंडक्टर है, और 10 टू द पावर -20 से -10 तक है तो इंसुलेटर है, और 10 टू द पावर -6 से 4 तक है तो वो सेमीकंडक्टर है। दैट मीन कंडक्टर सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो करने वाले सेमीकंडक्टर मिडिल में होगा, इंसुलेटर सबसे लो में होगा। अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी, जो हम कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इनको बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाएंगे। अगर हम बैंड थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके के बैंड रहते हैं। हम बैंड को अगर डिसाइड करें, थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं जब वो बहुत ज्यादा पास पास एक दूसरे के आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम जानते हैं जब भागों को बहुत पास पास लाओ तो बैंडेड मतलब पट्टी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है तो बैंड बनता है, इसलिए इसको बैंड थ्योरी कहा जाता है। इसमें दो तरीके के बैंड होगा, एक तो हो गया बैलेंसी बैंड, दूसरा हो गया कंडक्शन बैंड। व्हेन द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड, अगर इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होगा, दे आर ओवरलैप टू ईच अदर, हेंस द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द बैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड, हेंस इट इज नोन एज द कंडक्टर। लेकिन अगर इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएगा तो इनको इंसुलेटर कहेंगे। और अगर एनर्जी गैप स्मॉल है, मतलब एच कंपेयर टू मेटल से ज्यादा है लेकिन एच कंपेयर टू इंसुलेटर से कम है, और इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है कि वो जंप करेगा फ्रॉम
बैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो इस तरीके से सब्सटेंसेस को सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो 14 ग्रुप के एलिमेंट जो हमारे हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, जैसा कि आपसे कहा गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये हमारे सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन और जर्मेनियम स्पेशली, ये हमारे क्या करते हैं, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स की तरह बिहेव करते हैं। और जब हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंसेस में, किसी भी प्योर सब्सटेंस में कोई इंप्योरिटी मिलाई जाती है, तो किसी भी प्योर सब्सटेंस में इंप्योरिटी मिलाने की प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं हमारे, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं, जब उसमें रिच इलेक्ट्रॉन की इंप्योरिटी मिलाई जाए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की इंप्योरिटी मिलाई जाए। लाइक दैट 14 ग्रुप के एलिमेंट में जब 15 ग्रुप के एलिमेंट की इंप्योरिटी मिलाई जाएगी तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे। लेकिन जब 14 ग्रुप के एलिमेंट में 13 ग्रुप के एलिमेंट की इंप्योरिटीज मिलाई जाएगी, तब जाकर के क्या होगा, पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पे जो हमारे सब्सटेंसेस, सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हमने 5 क्लास में क्लासिफाइड किया गया। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स आर ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिनिंग मोशन। वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल एज द ऑन द एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने एक्सिस पे घूमने के साथ साथ अराउंड द न्यूक्लियस भी घूमता है। और हम जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, चार्ज पार्टिकल जब भी मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो जो इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो उसके बेस पर जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो 5 कैटेगरीज के होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो वीकली अट्रैक्ट बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और। इनमें जब एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वीकली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो ऐसे सब्सटेंसेस को पैरामैग्नेटिक्स कहा जाता है। लाइक दैट O2, Cu डाई पॉजिटिव एटसेट्रा। डाईमैग्नेटिक होते हैं वीकली रिपल बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जिससे कि दे आर कैंसिल टू मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड सो परमानेंट मैग्नेटिज्म as the metal ions of ferromagnetic substance are grouped into a small region called domains। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे, आप सोचने की बात है कि भाई मेटल्स तो बहुत सी हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, लेकिन आयरन में ऐसा क्या स्पेशल है कि उसमें मैग्नेटिज्म शो होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि मेटल आयन जो इसके रहते हैं वो छोटे छोटे डोमेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो इनके डोमेन्स हैं वो अलाइंड रहते हैं, सिमिलर डायरेक्शन में रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, इसलिए जो इनके एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को कैंसिल नहीं करते, ये एक ही साथ है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इनका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा हो जाता है और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो इनमें क्या होते हैं, डोमेन्स आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन इन इक्वल नंबर, अपोजिट डायरेक्शन इन इक्वल नंबर, हेंस दे आर कैंसिल टू ईच अदर। लास्ट 1 मिनट सर। हैरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तो अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डोमेन्स आर अलाइंड अनइक्वली इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में तो है लेकिन अनइक्वल है। देखिए 2 हो गए आपका सेम डायरेक्शन है, फिर एक अपोजिट हो गए, 2 सेम हो गए तो अपोजिट हो गए, दैट मीन दे हैव द सम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो इस बेस पे अगर हम बात करें आपसे थोड़ा सा इसको अगर हम समराइज करते हैं, ठीक है, अगर आपको समराइज करें इसको जाकर के, तो आज हमने डिस्कशन किया इसमें सॉलिड स्टेट पे। और सॉलिड स्टेट जो हमारा है, तो सॉलिड स्टेट में हमने इसमें ये देखा कि सॉलिड क्या होते हैं, मेटल का क्लास क्या है, यूनिट सेल किसे कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सीनियर सेकेंडरी केमिस्ट्री के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करता हूं, और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा करेंगे। और इस ये कोविड-19 का ये जो समय चल रहा है, इसमें हमें अपने आप को संभाल के रखना है, अपने परिवार के लोगों को संभाल के रखना है, शासन के नियमों का पालन करना है, और जरूर ही हम आने वाली, ये भारत देश ऐसा है जो आने वाली मुसीबतों से पहले भी उबर चुका है और आने वाले समय में भी उभरेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।